Yes, good afternoon to all. And my request to everyone is please switch on your camera. Start. Romanpreet, Param, Tarunjot, Ajay Pratap, Kashish, and Mr. Bajwa. Let's first we go through the attendance. 12A. Anyone from 12A? Yes, Romika. And anyone else from 12A? Harshit. Then from 12B, Ajay Pratap, Shriya, Kashish. Okay. From Mannat. मन्नत हो मन्नत तुम्हारे नाम से एक और एंट्री आ रही है 12D वेटिंग स्टेटस में है अभी यस तरुण जो तो बेटा म्यूट कर लो पता ही नहीं है म्यूट है या अनम्यूट है 12D वंशिका ये प्रियांशी अवनीत यस फ्रॉम 12E हर्षिता and from 12F Dilbag Singh and Mr. Rajveer, then Romanpreet and Jasmine. Okay, so I think attendance is done. Param also, Mr. Paramveer. Okay, ji. So let's move to the topic. So we need to discuss a bit about the project. So I have found some text to be discussed today. Now, like you basically arrange the things how basically a project proceeds. So let's move to the topic. So you can note down the steps also. Clear? So this is basically a course on a website. We are not concerned with the course, and that is what is the IT project management. So what is the definition is and what is the process here is. So first we will focus on what is the project life cycle. So a project has a life cycle. Anything anyone who will say a bit on this? What is a life cycle? क्या होता है हमारे पास? What is the definition for a life cycle? Yeah, whatever you know about the life cycle, not a exact definition I am asking. Whatever you know about a life cycle. That's a very common term. We have a life cycle. Humans have a life cycle. Clear? And a product has a life cycle. What is that life cycle is? Yes, Shriya. So life cycle can be described as a cycle of such things or such materials
that are essential for our life or our living style. जैसे लाइफ साइकिल मीन्स इफ वी थिंक ऑफ द ह्यूमन लाइफ साइकिल, सो ह्यूमन लाइफ साइकिल इज बेसिकली starting from the birth till death. Clear? That is the starting point and the ending point. Similarly, a project has also a different phases. It starts on a certain date, it ends on a certain date, and during that it has different phases. Like human beings having the different phases are there. Childhood is there, clear, and then no adolescence, then adulthood, then later on no, these are the phases. So similarly, a project also has a different phases in that. So we will focus on that phases one by one. First is that is the initiation. So presently we are on this step number 1, initiation. We are on the process of initiation. Like we are looking for that what could be the, presently we are focusing on the title of the project. ठीक है, कि हम किस टॉपिक के ऊपर अपना प्रोजेक्ट जो है वो बना रहे हैं. So we all are into this phase, how we are going to start the project. So yes, Vanshika, पढ़ना बेटा about the initiation. Initiation. A sponsor and governing team, sometimes called a steering committee, are appointed and they clearly define the goals and objectives for the project. A project manager is assigned to the project, a project team is recruited, and the project charter is created. For the project, in our example, the sponsor could be the head of IT, and the steering committee could consist of head of IT, the product procurement manager, and the head of sales. The objective of the project could be to replace all the Salesforce laptops with tablets by June 30, 2016, and to do so within a total budget of $20,000. So no, what are the important things from this paragraph to us is that is, first is we have to set the goals and the objective. ठीक है, कि हमारे जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बिलिंग के लिए ऊपर बना रहे हैं, इनकम टैक्स के ऊपर बना रहे हैं. एक टॉपिक आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट. किसी को पता है क्या होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट? एनीवन हु नोज अबाउट द इन्वेंट्री मैनेजमेंट? कोई स्टूडेंट हो जिसको पता हो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में? Today I was focusing on one more project topic, that is inventory management. Yes, Vanshika. सर इन्वेंट्री का जनरल मीनिंग होता है स्टॉक की. लाउडली बोलो थोड़ा बेटा, थोड़ा से बिट लाउडली. सर इन्वेंट्री का जनरल मीनिंग वैसे होता है कि स्टॉक की मैनेजमेंट करना. फॉर एग्जांपल की प्रेडिक्शन करना कि कितनी सेल्स होगी इस बार, उसके हिसाब से परचेज करना स्टॉक को, फिर उसकी जो मैनेजमेंट है जिस हिसाब से उसका सेल आउट होगा और हमें कितना लास्ट में चाहिए, दैट इज नोन एज इन्वेंट्री. ठीक है, you think of the applied area where the inventory management is used. जैसे किसी का कोई किसी का शॉपिंग मॉल है, किसी की कोई शॉप है, ठीक है, you think of a किराना स्टोर, किसी का किराना स्टोर है, ठीक है, तो उसका मेन पर्पस क्या है कि उसके पास जितनी आइटम्स हैं उसका उसने स्टॉक मैनेजमेंट करके रखना है. उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे पास व्हेन वी आर मेंटेनिंग द स्टॉक. इसके लिए कोई आप समथिंग इंपॉर्टेंट इज देयर, कि जैसे मेरे पास है कोई भी जैसे सोप है, तो आई डोंट वांट कि मेरे पास सोप जो है वो खत्म हो जाए. क्लियर? आई डोंट वांट कि जब वो एक सर्टेन लेवल पे आ जाए देन आई हैव टू गो फॉर रीऑर्डरिंग प्रोसेस. ठीक है, ताकि मैं उसका रीऑर्डर करके आई शुड बाय दी फ्रेश सोप, सो दैट नो दी, ऐसा ना हो कि कस्टमर मेरे पास आ जाए एंड आई से दैट दी मेरे पास सोप है नहीं, अवेलेबल नहीं है सोप. क्लियर? तो एक है इसके अंदर ऑर्डर प्लेस करना. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में? ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कितना ऑर्डर प्लेस करना है. ये ना हो कि हम इतना ऑर्डर प्लेस करके बैठ जाए, पता लगे 10 साल हमारे पास, एक बार मैंने बाई किया शॉप से वो खत्म ही नहीं हो रहे 10 साल तक. ठीक है, सो यू हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, कॉस्ट. वी हैव टू बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, और इसके अंदर हमने क्या करना होता है, अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना होता है कि हमें ऑप्टिमल कॉस्ट पड़े, सो दैट आवर बिजनेस रन्स इन दी प्रॉफिट साइड. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में होता है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड बाय वंशिका, दैट वी हैव टू मैनेज द स्टॉक्स. सो दैट्स आल्सो वन ऑफ द प्रोजेक्ट इज देयर. तो सबसे पहले हमने क्या करना आता है अपने प्रोजेक्ट का बेसिकली इनिशिएशन में, कि व्हाट वी हैव टू बेसिकली सिलेक्ट द टॉपिक, उसके अंदर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. कि जैसे मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहा हूं, तो मेरा गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि जिस भी शॉपकीपर के लिए मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बना रहा हूं,
ठीक है, ही इज एबल टू बेसिकली, उसका एफर्ट्स जो है, ही इज एबल टू बेसिकली मैनेज हिज थिंग्स इन ए बेटर वे, वो अपने प्रॉफिट्स को अच्छी तरह से मैनेज कर पाए, और शाम को उसको पता चल जाए कि मेरे पास किस किस चीज का कितना कितना स्टॉक बचा है और किस चीज का मेरे को रीऑर्डर करने की जरूरत है। ठीक है, अगर उसको लगता है कि नो अब मेरे पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, वो खत्म होने वाले हैं, सो ही कैन मेक ए ऑर्डर आल्सो। सो वी हैव टू सेट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर आवर प्रोजेक्ट। और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इनिशिएशन में बजट। तो बजट का तो हमारे पास कोई ऐसा इशू नहीं है कि हमने कोई 10 लाख का बजट लेके काम शुरू करना है। एक आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है, और बाकी आप अपनी मम्मी पापा से जो भी पैसे आपको लगता है कि आप प्रोजेक्ट के लिए लगता है कि आप शुरू कर सकते हैं, क्लियर, वट एवर द कॉस्ट यू नीड कैन स्टार्ट इट, क्लियर। सो बजट हमारे लिए इतना क्रूशियल नहीं है, बिकॉज हमने इसको अपने लैपटॉप के साथ और वट एवर द अदर कॉस्ट इज नीडेड, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, that is the budget for us. Now the next point here is planning. The next important point is planning. How to plan the project, clear? So that's more crucial. Yes Manat, beta padhna isko, planning. Planning. The project manager and the project team work together to define all the deliverables or intended outputs of the project, and then plan all the tasks needed in order to produce each deliverable. Each task is assigned a start date, end date, and responsible persons, and all the tasks together roll up into project plan. The project planning process can be repetitive in nature, and it's quite normal for planning to occur often throughout the project. For the project, in example, deliverables of the project could be specification for tablets to be sourced, the requests for proposal documents to go out of suppliers, and the tablets training plan and training manuals to be used to teach the sales force how to work with the new tablets. The project plan would be then constructed by listing all the tasks required to produce each of the deliverables, and each of the tasks would be assigned a duration, start date, and end date. Clear? So basically, project planning is there, that we are broadly planning the things, that what is the start date for our project is, what is the end date for our project is, how much time we'll be devoting to our project so that we can finish the task on time. And planning, we have to thoroughly plan the things, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि जैसे हमारा जो स्टेक होल्डर है, क्लियर, इफ यू आर मेकिंग इट फॉर ए शॉपकीपर, जिसके लिए आप बना रहे हो, इफ यू नीड ए इंटरेक्शन फॉर दैट, so you have to take the specification from that. स्पेसिफिकेशन का क्या काम है कि बेसिकली हमने बनाना क्या है, उसको व्हाट इज द नीड, जो भी हमारे लिए कस्टमर है जिसके लिए हम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, उसकी नीड्स क्या है, वी हैव टू लुक अपॉन द नीड्स। हमने उसके लिए, हमने किसी भी शॉपकीपर के लिए स्टॉक मैनेजमेंट का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बना दिया, तो बाद में पता चले कि वो क्लॉथ्स की शॉप है, हमने किराना स्टोर के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, सो दैट्स बेसिकली a gross mismatch. So we have to take the, here in planning we have to take the specification from the customer. Maybe we say that जिस शॉपकीपर के लिए बना रहे हैं या जिसके भी लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, so we have to take the specification. अगर हम खुद ही अपने लिए बना रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स के ऊपर बना रहे हैं, तो हम ये तो नहीं है कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, तो हमें खुद ही उसकी वेबसाइट से स्पेसिफिकेशन लेनी पड़ेगी कि इनकम टैक्स की कौन कौन सी स्लैब्स हैं। तो स्पेसिफिकेशन मींस दैट वी हैव टू बेसिकली ब्रॉडली डिजाइन दी थिंग्स कि हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। स्पेसिफिकेशन मींस गैदरिंग दी रिक्वायरमेंट्स, क्या चीज हमने अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर रिक्वायर्ड है। सो द स्पेसिफिकेशन इज बेसिकली फॉर, इट इज नेम्ड एज गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कि प्रोजेक्ट में हमें किस किस की चीज की जरूरत पड़ेगी। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ, द एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब जो एग्जीक्यूशन वर्ड है हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट में लिख दिया एग्जीक्यूशन वर्ड। सो एग्जीक्यूशन वर्ड इज बेसिकली नाउ द, इट टेक्स, इसके अंदर काफी सब ब्रांचेज हैं। नंबर 1 तो इसके अंदर ब्रांच है, दैट इज द डिजाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, कि जब भी जैसे हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं कि मेन मेन्यू में क्या होगा, सब मेन्यू में क्या होगा, और वो सब मेन्यू कैसे इंप्लीमेंट होगा। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बनाया था, दिखाया था, उसके अंदर दिखाया था कि मेन मेन्यू में क्या है, how to add a student, how to remove a student, how to add the data to the CSV file like this. तो एक हमने मेन मेन्यू डेवलप करना है, फिर उसके सब मेन्यू के अंदर आप कौन कौन से उसके अंदर आप उसके अंदर फंक्शंस डालना चाहते हैं।
सो दैट इज द डिजाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, डिजाइनिंग के बाद कोई बताएगा इसके बाद क्या प्रोसेस है? आफ्टर डिजाइनिंग व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू? आपने अपना प्रोजेक्ट डिजाइन कर लिया, व्हाट नेक्स्ट यू विल डू? डिजाइन के बाद थोड़ा हिट एंड ट्रायल, गो विद दी हिट एंड ट्रायल मेथड। सोच के देखो क्या बनेगा इसके बाद। डिजाइनिंग आपने कर ली है, व्हाट यू विल डू नेक्स्ट? यस, एनी ट्राई? यस रोमिका? So we will add the main steps and then we'll run the project. ठीक है, बेसिकली क्या है, गुड स्टार्ट बाय दिस रोमिका। इसमें क्या है कि डिजाइनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है कोडिंग, कि जो भी प्रोजेक्ट हमने डिजाइन किया है उसका कोड लिखना है हमें। ठीक है, तो कोडिंग के बाद हम साथ साथ में क्या करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे कि कोड हमारा जैसे, ठीक है, जितना भी पार्ट हमने किया है दैट इज रनिंग और नॉट। तो लास्ट पे हमने क्या करना है, कोडिंग के बाद, डिजाइनिंग के बाद आगे हमारे पास कोडिंग फेज, कोडिंग के बाद आगे हमारे पास टेस्टिंग, कि जो भी हम इनपुट ले रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर उससे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, सही आउटपुट दे रहा है हमें या नहीं दे रहा। अगर हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए बनाया है, स्कूल मैनेजमेंट के लिए बनाया है, तो हमने चेक करना है कि अगर स्कूल मैनेजमेंट के लिए है तो स्टूडेंट को ऐड कर पा रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को एनालाइज कर पा रहे हैं, तो जो जो फंक्शन हमने उसके सेट किए थे वो सारे फंक्शन चल रहे हैं या नहीं चल। क्लियर? तो इसके लिए जो भी हमें एरर आएगा उस एरर को हमने रिमूव करना है। वी हैव टू डिबग दैट पर्टिकुलर error, so that is done in the phase of testing. और टेस्टिंग, when the testing is done properly, so then the उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है that is called the step number 4, that is called the deployment। तो हमारा जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल जाएगा उसको हम डिप्लॉय कर देंगे, मींस नाउ इट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, नाउ यू कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट वेरी प्रोजेक्ट। और उसके बाद कोई फेज आती है, उसके बाद तो आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, आपने अपना टेस्ट, अपना प्रोजेक्ट दिखा दिया, और उसके बाद एक फेज होती है, दैट फेज इज कॉल्ड द रिटायरमेंट फेज। ऑल द प्रोजेक्ट बेसिकली दे रिटायर ऑन ए सर्टेन डेट। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक प्रोजेक्ट की एक स्टार्टिंग डेट है, एक एंडिंग डेट है। एंडिंग डेट इज द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल सेज दैट ऑन ए सर्टेन डेट द प्रोजेक्ट हैज स्टार्टेड एंड ऑन ए सर्टेन डेट द प्रोजेक्ट हैज एक्सपायर्ड और रिटायर्ड। कोई आप एग्जाम्पल बता सकते हो किसी लाइफ में से कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट की जो स्टार्ट हुआ और एंड हुआ, दैट यू कैन से द स्टार्ट डेट एंड एंड डेट? प्रोजेक्ट में सिर्फ आईटी प्रोजेक्ट नहीं होते, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आते हैं। जैसे लेट्स से कि दसुआ के अंदर फ्लाईओवर बन रहा है, तो जब वो फ्लाईओवर स्टार्ट हुआ किसी ना किसी डेट को तो वो स्टार्ट होगा वो प्रोजेक्ट। क्लियर? और जब हमारा फ्लाईओवर सिटी के अंदर फ्लाईओवर बन गया, दैट इज दी वी कैन से दी end date for that particular project when the flyover is ready to be used by the public। और कोई ना कोई डेट ऐसी भी आ जाएगी जब वो उसकी डेट एक्सपायर हो जाएगी, एंड नाउ दैट यू हैव टू बेसिकली go for dismantling that particular flyover also। So that is the basic about the project development is there, broadly जो मोटे मोटे पैरामीटर हैं। ठीक है, so in that phase you can work on the project side। So first step तो है हमारे पास इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या है हमारे पास, यू फर्स्ट गेट योर टॉपिक अप्रूव्ड, थोड़ा सा उसके बारे में काम करके प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक डिटेल लेके क्या क्या फंक्शनैलिटी आप प्रोजेक्ट के अंदर देना चाहते हो, सो देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड रिगार्डिंग प्रोजेक्ट इफ यू हैव? So I think no question is there. So yesterday we were working on the SQL topic. We just start one topic and then
Yes. So we are ready with this topic, that is the SQL we were going through. Fine. So yesterday we have focused on the alter statement as well as the join process, how to join two tables. So we have taken the practical example of which table? This orders and persons table. So this tables example we have taken how to join two tables and how to join these two tables with the help of natural join. And we have discussed how to apply the different types of constraints, how to add a column, how to remove a column. So that is done with the help of these alter statements. Clear? Then we discuss the order by clause, then the having clause, and the different aggregate functions. Okay. Who will tell in briefly about the having clause? Koi? Yes, Manat, aap batao. Having clause. So it is used to give a condition What type of condition? like चलो आप यहाँ से थोड़ी हेल्प ले लो, वर्क ऑन दिस. इसको पढ़ो एक बार फिर से. the having clause is used in the select statement to specify filter conditions for a group of rows or aggregates. The having clause is often used with the group by clause to filter groups based on a specified condition. To filter the groups returned by group by clause, we have a having clause where is applied before group by, having is applied after, and can filter on aggregates. तो बेसिकली ये आपको पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे बता दिया है कि आफ्टर दी टेबल वी वर्क विद दी वेयर क्लास के ऊपर काम करती है ग्रुप बाय क्लास, और ग्रुप बाय क्लास के ऊपर अगर हमने कंडीशन अप्लाई करनी है तो देन वी हैव ए हैविंग क्लास. सो यस्टरडे वी हैव गॉन थ्रू दी a few examples also. Then it was the another important point is Cartesian product. Cartesian product क्या होती है? Cartesian product. Yes, other than Mannat, to whom we should ask. Yes, Harshita, आप बताओ Cartesian product. I think Harshita is not available. नहीं पता. हाँ जी, हाँ हर्षिता आप बता दो. I don't know. Okay जी. And anyone else? Cartesian product. So what is the, yes, Shriya? So Cartesian product, I think refers to the product of two rows. No, it's not the product of two rows. It is the product between two tables. Clear? Two relations. Let's we say that we have two relations R1 and R2, and then the Cartesian product of these two relations R1 and R2 would be the combine each tuple with the first relation with the each tuple of the second. इसकी एग्जांपल की थी हमने. Yes, Vanshika. No, sir. हाँ जी. सर नहीं नहीं. चलो एक बार एक इसकी एग्जांपल करके एंड वी जस्ट वाइंड अप द थिंग्स. यस श्रिया, कोई पॉइंट है आपका? No, sir. वो एक्चुअली गलती से रख हो गया था. कोई बात. So it's taking a bit time to start with XAMPP.
So let us move to the command prompt. Yes, ये command prompt दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. अब बताओ क्या एरर आ रहा है? यस, कोई बताएगा क्या एरर आ रहा है? सर शायद XAMPP ऑन नहीं किया। हाँ जी, सर शायद XAMPP को और रन नहीं किया इसलिए आ रहा है। हाँ, so yes, I think now this will work. ठीक है, so connectivity के लिए सबसे पहले your XAMPP should be in the working. Yes, now the connectivity is done. So use the test database and हमारे पास जो कल हमने टेबल यूज किए थे, one was persons और दूसरा टेबल था हमारे पास ऑर्डर्स। ठीक है, बहुत सिंपल ऑपरेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे ये मेरे पास दो टेबल हो गए, ठीक है। टेबल 1 कंसिस्ट ऑफ द पर्सन्स इंफॉर्मेशन, टेबल 2 रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर्स इंफॉर्मेशन। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यू हैव टू जस्ट मेंशन बोथ द टेबल्स। जैसे पहला टेबल है मेरे पास पर्सन्स, दूसरा टेबल है मेरे पास ऑर्डर्स। व्हेन यू मेंशन दीज टू टेबल्स, सो ऑटोमेटिकली द कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी परफॉर्म। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो मेरे पास सेकंड टेबल है ऑर्डर, उसका पहले फर्स्ट टेबल की सारी रोज के साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ऑर्डर 1001 एंड लाइक दिस, क्लियर। फिर ऑर्डर दूसरा कौन सा था, ऑर्डर 102, तो इसका भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा सारी रोज के साथ। तो इट मींस फर्स्ट टेबल के अंदर 4 रोज हैं, दूसरे टेबल के अंदर 2 रोज हैं, 4 into 2 यू विल गेट हियर 8। रिजल्टेंट कितनी रोज बन जाएगी मेरे पास, 8 रोज। क्लियर। सो दिस इज वेरी सिंपल ऑपरेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत ज्यादा इस ऑपरेशन का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है इस ऑपरेशन, ठीक है, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट का आइडिया क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट मेजर ऑपरेशन, दैट इज द जॉइन ऑपरेशन, जिसके अंदर है हमारे पास नेचुरल जॉइन हमने कर लिया है। नेचुरल जॉइन के बाद है लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। सो दिस ऑपरेशन वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट है आप लोगों का, कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट और एनी अदर क्वेश्चन यू हैव, सो यू कैन आस्क। So no question is a very now dangerous state. So either you are studying too much or you are studying now, you say just it's okay sir, class खत्म हो रही है, तो बड़ी खुशी की बात है। So thank you very much for being in the class.